आई एम गार्गी गोपेश और आज मैं हेल्थ हीरो की सीरीज़ में एक नया नाम लेकर आई हूँ। वो है मिस्टर नरेन बख्शी। नरेन बख्शी पिछले 55 साल से यूएस में सेटल्ड हैं। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया बिट्स रांची से। उसके बाद में 2 मास्टर्स की डिग्री ली उन्होंने रेनाउंड बर्कली यूनिवर्सिटी से। कई प्रकार के भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, मेंटर, इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, उन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ को देखा है। उसके बाद वे वाजपेयी जी के संपर्क में आए और उनसे मिलने के बाद में उन्हें मोटिवेशन मिला हिंदुस्तान के लिए कुछ करने का। हिंदुस्तान के लिए कुछ करने के लिए ये आवश्यक था कि पहले इंडिया को जान लिया जाए। तब से लेकर अब तक, यानी कि पिछले 23 साल से वो हिंदुस्तान में भी बराबर समय रहते हैं और यूएस में भी बराबर समय रहते हैं। और तब से लेकर आज तक वो लगातार लगे हुए हैं कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। उन्होंने टाई राजस्थान की स्थापना करी, उसके फाउंडर रहे। उन्होंने बहुत सारी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के साथ में काम किया, जिसमें से कुछ नाम परिचय के मोहताज नहीं हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, वाजपेयी जी खुद। वे ओबामा के इंडियन डेलीगेशन टीम का भी हिस्सा रहे। यूँ तो बहुत सारी उपलब्धियां उनके नाम हैं, बहुत सारी मैगजीन्स के कवर पर वो रहे हैं, लेकिन आज का जो हमारा फोकस है वो उनकी प्रोफेशनल उपलब्धियों से कुछ हटकर है। जितनी उन्होंने प्रोफेशनली तरक्की करी, उतनी उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी तरक्की की। और वो एक सबसे बड़ा शब्द जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य, वो उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। गुड मॉर्निंग मिस्टर बख्शी। So your life has been a very inspiring one. Now I would like to know that the young age of 80, what is your broad perspective towards life? So we must learn to manage our life. First thing we do is to get educated and become adult. After you become adult, you must manage your life in 4 different dimensions. The first is you must manage your health. Beyond that, you must find a way to manage your relationship with your family and friends. Third thing you must do is to figure out a way to manage your wealth. And finally, in all this, you'll never be happy unless you are a good person, good human being, a spiritual human being. You must know how to give back to the society. True. So then, sir, you said the health management as a broad perspective, and it was सबसे पहला था ये आपने जब बताना शुरू किया। तो मैं आपकी हेल्थ के बारे में जानना चाहूँगी। जैसे कि मैंने सुना आपको बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस थी, आपने उन्हें रिवर्स किया या उन पे काम किया। तो कैसे आपने अपने हेल्थ को मैनेज किया? आपकी क्या प्रॉब्लम्स थी? आई वुड लाइक टू नो। So Gargi, by year 2000, I had everything in my life. My company had gone public in US markets. I was a famous person because my photos were there, local newspapers, Fortune magazines, many other places. But inside my heart, I was not a happy person because I realized that without health, there was nothing. Even though I had a great family, friends, had reasonable wealth, and I was a good human being, but I was not a happy person. Why? Because at that moment, I was suffering from so many ailments. I was extremely obese. I had become diabetic. I was in and out of hospitals with height of hernia, endoscopy, colonoscopy, all kinds of problems were going on. Coupled with the fact that I started to come back to India, I realized that my problems were my own because I had my father was in good health. My mother was in good health. Who was your father at that time? When I started to come back here, he was already around 80 Okay. and he was in good health. When I looked at my mom, she was in good health for her age. So it was not genes, it was my own lifestyle. So that made me say, what do I do?
Fortunately, I had good friends. So I was able to get some help from my close friend, Mr. Shamdas, able to get some help from Anil Kodwani, and I used all the medical practices that was available from my Kaiser. And using all those in 18-month period, I completely changed my metabolism, which went up. Okay. My weight started to come down, and I lost 40 kilograms, 90 some pounds. Oh, nice. That's nice. That's nice. So given that, I realized that I was becoming fit. I also realized that all my life I was focused on cutting weight. What was needed, and what I must tell anybody and everybody, don't focus on reducing weight. Focus on becoming fit. Fit means you must be active. You must be able to be socially active, and also make sure you live life fully. That's a very good line. Do not lose weight. Focus on being fit, being healthy. Yes. That's it. So, sir, then ये क्या है स्वास्थ्य के लिए मैं जहाँ तक कहूँगी इट्स अ जर्नी और यात्रा कभी भी अकेले नहीं की जा सकती है सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि आपके सपोर्ट सिस्टम क्या रहा, आपके हेल्पिंग पिलर्स कौन से थे जिन्होंने ऑल थ्रू दिस जर्नी, बिकॉज इट्स अ जर्नी, ये एक दिन का काम नहीं है, आप इसके बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपका सपोर्ट सिस्टम क्या रहा, हु हेल्प्ड यू? So it started by also making sure that I understood that whatever I was trying to do, why was I wanted to be fit? I realized that worst thing I can do for my family would be in a nursing home, becoming a burden on my wife and family, and then nothing to show for it. So given that, as I mentioned to you before, Dr. Shamdas did a trick. He really pushed me to become fit by increasing my metabolism, by a lot of exercises. At the same time, change my eating habits. So my food changed, my sleep became disciplined, my ability to enjoy my life became better. और इस जर्नी में यहाँ आई वुड लाइक टू टेक द लिबर्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कुसुम मैम हियर। सो इस जर्नी में फैमिली का क्या रोल रहा? तो you cannot really do anything much without the support of your family. So Kusum sometimes was irritated with all the changes I was making, but she was always with me. In addition to Kusum, my entire family was supportive because I was willing and able to tell them what my goals are and was willing to share with them. So Kusum, you have been very helpful. What did you notice? आपने मैम उस जर्नी के ड्यूरेशन में क्या नोटिस किया? आपको लगा ये कर पाएंगे या आपको लगा कि हर बार की तरह थोड़ा पतला हो जाएंगे फिर वापस गेन कर लेंगे? आप बताएं। नहीं, इनकी खासियत यही है कि अगर कोई चीज़ सोच लेते हैं तो उसके ऊपर ही गोज 100%. सो ही was no matter how irritated I was, he won't listen. And in a way, I mean, I knew that it's good, but sometimes it was irritated because he was too particular, but he did it. आपको ऐसा कभी नहीं लगा जैसे हिंदुस्तान में ये होता है कि आप थोड़ा सा वेट रिड्यूस करने लगे तो लोग कहते कमजोर हो गए, बीमार लग रहे हो, आपको कभी ऐसा नहीं लगा? हिंदुस्तान में तो मोटे कोई हेल्दी समझ। बिल्कुल सही बात है। So it is true that many a times when I came to India, first question people says, अरे बहुत कमजोर हो गए। हाँ, तो वो बात तो बहुत ही डेंजरस है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हंस के टाल जाना चाहिए। मैं तो फिट हो गया,
So, given all this, first thing I want to say is you can change your health trajectory at any age. Age is not a bar. In my case, I started almost when I was 60 plus. ओके Right? पर जबकि हम तो ये मानते हैं कि 60 प्लस में अब सब कुछ हो गया, अब शांति से बैठ जाओ, अब जो है सो है, और प्रयत्न भी नहीं कर होता भी मतलब स्लो हो जाता हाँ है, होता नहीं है। it itself is an example कि आप उस एज में you were so active and you were so determined कि I need to do some healthy changes to my lifestyle. So, what also happens is as you improve, people start noticing that you are improving. And if they are supportive, you keep on going. So, in my case, by the time I became fit, people in Silicon Valley started to actually call me health hero. When I realized that yes, I did it, but it looked like whatever I did, many others could do. So I joined hands at that time with Dr. Vij and Somnath Chatterjee because we had already done lots of surveys in India Community Center and realized that in Silicon Valley, which is the wonderful place where so much innovation takes place, Indians have created a lot of wealth, they are in top positions, there's so many doctors to help them out. Still, an average Indian's health was worse than average anybody. So that motivated us to create CWC Global, whose goal was to help Indians anywhere. So then this CWC Global, it was born, and definitely it was born to make an impact. Now ये वहाँ था US में, आप इसे इंडिया लेकर आए. सो मैं वो जानना चाहूँगी कि वो आइडिया क्या था या वो विचार क्या था जिसकी वजह से आपने उसे यहाँ इंडिया चैप्टर स्टार्ट किया. तो ऐसा हुआ कि हम कोविड टाइम पे इंडिया में 14 महीने रहे. 14 months Kusum and I were here. So during that period of time, there was a lot of introspection I was able to do, discussions with my family and friends. And I realized that the problems that we were noticing in the United States were coming very fast in India. Same obesity, same diabetes, same heart issues were becoming prevalent. India was changing, not for good, but bad. We were losing our good heritage of disciplined life, yoga, meditation, good spiritual lives, good family, to a Western way of thinking. So we were bringing bad things from America to India and losing our own good things. So that Gargi made me say that why shouldn't we be able to bring the best practices from US, but Indianize them. Make sure that we can offer यहाँ भी वही प्रोग्राम बट जो यहाँ पे चलेंगे. जो हमारी संस्कृति के साथ. That's a very noble. That's a very noble. So I would like to know कि आपके मंत्र, 4 मंत्र या लाइफ के आपके कुछ ऐसे मंत्र होंगे जो हेल्दी रखने में आपको हेल्पफुल हैं. तो मंत्र ये है कि our CWC stands for that we first educate people, we inspire them through the story of health heroes, just like mine. Our team, everybody in our team now is a health hero. Mr. Kala, who has now become the managing director of this institution, Gargi yourself, and every other member is a health hero. So we educate, we inspire, we support, and then we always look for measuring impact. So that's our broad theme of CWC. But when it comes to your own life, there are few factors that we must understand. Without body recovering from good night's sleep, which can only happen when you are calm, through meditation, through other means, then number one thing for anybody
is to make sure that our oxygen intake goes up. That can only happen through many means. You can run, you can do a treadmill, you can do pranayam. Any one of those things increases your oxygen intake and improve your hearts. Second thing you must do, which is one of the dangerous things that people are not doing, in place of soft drinks, please increase your water intake, especially early morning. After water, air and water, good nutrition makes a difference. Now the question is, what is good nutrition? CWC stands for Crack Your Own Wellness Code. What that means is we all have to figure out some combination of things that are workable for us in a sustainable way. The best food for human beings that has been scientifically proven is plant-based, whole food, organic, local, and seasonal. So if you can get all these 6 things, that's the best food. So you want to minimize wrong food, which is mostly SOS, salt, oil, and sugar. You want to minimize that. You want to maximize greens, fruits. That's the food part. And then finally, become active. Show gratitude. Also be ready to help others. That's what makes life happy. That's true. You have a Midas touch. जहाँ जाते हैं आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस कर देते हैं. सो सर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है कि व्हाट इज़ अ सस्टेनेबल, जैसे आपने अपने केस में बताया कि ये सब होना चाहिए, तो आप अपनी बॉडी का हेल्थ कोड आप खुद डिटेक्ट करते हैं, उस पर आपके क्या व्यूज़ होंगे? हाउ डू यू मेक योर सस्टेनेबिलिटी, हाउ डू यू कंटिन्यू विद योर प्रोग्रेस? तो गार्गी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन अपने आप को डिप्राइव कर सकते हो. लेकिन यदि सस्टेनेबल चीज़ है तो आपको ऐसी चीज़ खानी पड़ेगी जो कि आपको अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है. तो आपको ही समझना पड़ेगा कि बिल्कुल एग्री करती हूँ सर, क्योंकि क्या होता है कि कोशिश तो मैं भी करती हूँ. 4 दिन मैं बहुत डाइट करती हूँ, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, 5वें दिन आई एंड अप ईटिंग डबल. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने को अपने आप समझना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा, कुछ लोग इसको देख के हंसते भी हैं, कि मैं दाल खाता हूँ, दाल में सलाद डाल देता हूँ. क्यों? क्योंकि सलाद खाना बहुत अच्छी चीज़ है और मैं उसको, दाल को उसको ड्रेसिंग के जैसे यूज़ कर लेता हूँ. नाउ आई एन्जॉय ईटिंग इट. वही बात पानी की है. सुबह पानी पीना अच्छी बात है, मेरे को गर्म पानी अच्छा लगता है, चाय अच्छी लगती है, तो चाय पीता हूँ. कितने कप? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कप पी लेता हूँ. लेकिन वो चाय दूसरी होती है. वो चाय हर्बल टी, उसमें कुछ भी गलत चीज़ नहीं है. तो मैं 4 कप, 5 कप पी लो तो 5 कप पानी भी चला गया, अखबार भी पढ़ लिया, मस्ती भी आ गई, एंजॉय भी कर लिया. I know, मैंने आपकी चाय टेस्ट की एंड दिस इज़ वेरी टेस्टी, आई कैन से. तो कहना मतलब ये, हमको अपना ही तरीका ढूंढना पड़ेगा. अब वही खाना हो सकता है मेरी वाइफ कुसुम के लिए सूटेबल ना हो, तो उनको अपने हिसाब से करना पड़ेगा. तो खाना वही है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन, जैसे मेरे को स्पाइसेस अच्छी लगती हैं, स्पाइसेस में कोई ख़राबी नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं. उसमें तेल मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है. तो कहने का मतलब, अपने आप को ऐसी चीज़ बनाओ जो कि सुबह से शाम तक आप खाओगे, हैप्पी रहोगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी मिठाई मत खाओ. कभी कभी खा सकते हो, लेकिन रोज़ ही खाने लग गए तो बीमार हो जाओगे. तो सर आपने कहा आपने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर दिया, तो बिल्कुल ऑनेस्टली एक बात बताइएगा, आप क्या डायबिटीज़ की गोली नहीं लेते? तो देखिए, ऐसा है, 13 साल हो गए, गोली लेना बंद हो गया. और साथ के साथ 13 साल का मेरा रिकॉर्ड मैंने पब्लिश किया हुआ है. तो मेरा A1C कभी भी 5.5 से ज़्यादा नहीं हुआ.
अब इससे बड़ी बात तो क्या बताऊँ मैं कि डॉक्टर्स मेरे को आज भी, काइजर वाले डॉक्टर्स ने नोट कर रखा है कि आई एम ए डायबिटिक। मैं उनसे लड़ाई करता हूँ कि मैं 13 साल बाद भी आप मेरे को बोलते हो डायबिटिक हो, तो उनका जवाब ये होता है कि ज़्यादातर लोग एक बार डायबिटीज़ हो जाती है तो उनसे छूटती नहीं है। मेरा भी यही मानना था, इसीलिए मैं सरप्राइज हुई, इसीलिए मैंने आपसे पर्टिकुलरली पूछा कि क्या आप कोई गोली नहीं लेते। तो हमने ये देखा है कि 70 to 80% अपनी जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो रिवर्सेबल है। 100% नहीं है, टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं रिवर्स होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द डायबिटीज़ इज़ रिवर्सेबल। सेम थिंग इज़ इवन ट्रू ऑफ हार्ट। आज सोचिए गार्गी, मेरा हार्ट जो है उसकी जो पल्स रेट है वो अबाउट 40 रहती है। तो डॉक्टर्स को बहुत चिंता होती थी, तो उन्होंने टेस्ट किया, मेरे परफॉर्मेंस के लिए मॉनिटरिंग भी लगा दी, यहाँ पे चिप लगी हुई है मेरे। लेकिन उन्होंने सब टेस्ट करके बाद में बोलते हैं कि मिस्टर बख्शी आपका हार्ट तो एथलेटिक हो गया है। तो ए पर्सन जो डायबिटीज़ था, जो इतना ओवरवेट था, आज उसके लिए बोलते हैं डायबिटीज़ की बजाय हार्ट आपका एथलेटिक है। आपने कहा आपका हार्ट एथलेटिक हो गया है, तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा बताएं सबको कि व्हाट इज एथलेटिक। सो एथलेटिक हार्ट का मतलब ये है कि यदि आपका हार्ट पंप अच्छे ढंग से करता है तो उसको कम पंप करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी का यदि 70 पल्स रेट है तो एक 70 टाइम्स पंप कर रहा है, वही ब्लड सर्कुलेशन मेरा 40 बार में हो जाता है, तो मेरी लाइफ एक्चुअली बढ़ गई है। तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन उनको डर ये लगता था कि इतनी ओल्ड एज में इतना कम पल्स, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार्ट बम्प नहीं कर पा रहा। लेकिन अब उन्होंने टेस्ट करके देख लिया कि सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इवन हार्ट कैन बी इम्प्रूव्ड। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर काला, उन्होंने भी प्रूव करके दिखा दिया है कि हार्ट इम्प्रूव हो जाता है। और इन सब में एक और चीज़ हमेशा है कि आप जितना खुश रहोगे तो इसमें लाफ्टर योगा का योगदान भी बहुत है। तो हैप्पीनेस, व्हेन यू आर हैप्पी विद अदर पीपल, व्हेन यू आर ट्राइंग टू हेल्प अदर पीपल, मेक्स यू हैप्पी। बख्शी, आपसे बात कर कर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जानने को मिली, और ये समझ में आया कि इट इज़ नेवर लेट टू बिगिन विद। आप किसी भी एज में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो गार्गी, उससे भी बेटर ये है कि मैं यंग लोगों को बोलूँगा कि ऐसा काम ही मत करो जिससे आपको रिवर्स करना पड़े। तो बेस्ट चीज़ तो ये है कि प्रिवेंट करो। लेकिन आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है कि एक बार कोई गलती हो जाए फिर भी आप सुधार लो तो बहुत अच्छी होती है। बट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थैंक यू सर। आज हमने देखा सर से बात करके कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नहीं की जा सकती, और उसके लिए उम्र कभी आड़ी नहीं आती। आप यकीन मानिए, मैं आज इनके साथ बैठी हूँ और वो मुझसे ज़्यादा एक्टिव है, मुझसे ज़्यादा एंथुजियास्टिक है। तो मैंने उनसे आज बहुत कुछ सीखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो आइए उनकी लाइफ की हेल्दीनेस को हम अपनी लाइफ में रेप्लिकेट करें। थैंक यू। सो मैम, यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है कि सर की जो हेल्थ जर्नी रही, उसका इम्पैक्ट आपने अपनी फैमिली में क्या देखा? फैमिली में बच्चों ने इम्प्रूव भी किया है और एटलीस्ट अवेयर हो गए हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो जब हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं या खाना वगैरह खाते हैं तो बच्चे अपना ध्यान रखते हैं कि हम ये खाएंगे या ये लोग खाएंगे। तो उसको देख के अच्छा लगता है कि वो भी अवेयर हुए हैं। हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर। हाँ हाँ। ये कहते हैं ना, एक चीज़ सुधरती है तो सब सुधर जाता है।
तो हेड ऑफ द फैमिली ने शुरुआत की तो उसका इम्पैक्ट आपको फैमिली में भी देखने को मिला। नहीं, वैसे मेरे एक सन इन लॉ डॉक्टर भी हैं, तो उन उन तो एक डॉटर के घर में उनकी वजह से, और मेरी डॉटर इन लॉ बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो उसकी वजह से मेरे सन को भी मतलब एनकरेजमेंट तो डैडी से मिला है, लेकिन जो घर के अंदर कुकिंग वगैरह होती है तो वो हेल्दी कुकिंग होती है, तो आपकी तो फैमिली पूरी हेल्थ हीरोज फैमिली है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर हाँ ट्राई कर रहे हैं वो लोग। गुड गुड। जब शुरुआत जब कहीं से होती है तभी हम कहीं पहुँचते हैं, शुरुआत ही बहुत ज़रूरी है। इट्स गुड टू नो, इट्स गुड टू नो। इसी कंटिन्यूशन में एक बात आपसे जानना चाह रही थी कि अभी वर्तमान में आपका जो लाइफस्टाइल है, वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, वो क्या है? तो देखिए, लाइफ कंटिन्यूसली एक जर्नी है, तो हर वक्त यदि आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा और एज के साथ कुछ डिक्लाइन भी होता है, तो उसके लिए कंटिन्यूस असिस्टेंस चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, आई नाउ हैव ए स्लीप disciplined sleep. I wake up and spend 90 minutes to 2 hours in making sure that I get pranayam, I do meditation, I'm able to do activities, I'm able to walk 8 to 10,000 steps. So that has become part of life. फिर सुबह उठते ही हेल्दी चीज़ें खाने की इच्छा होती है। क्या खाते हैं? कुछ बादाम ले लेते हैं, कुछ मुनक्का ले लेते हैं, फिर चाय पी लेते हैं 4 कप, लेकिन वो हर्बल टी। उसके बाद में पहला खाना 12-1 बजे होता है। उसमें क्या है? मोस्टली दाल, सब्जी, रोटी, सिंपल। सेकंड खाना भी पहले 9-10 बजे खाते थे, अब 6-7 बजे खा लेते हैं, तो दैट मेक्स इट बेटर। तो लाइफ में स्लीप टाइम पे हो जाए, खाना राइट मिल जाए, एक्टिविटी हो जाए और साथ में एक्टिव रहे, तो आई एम टुडे मोर एक्टिव देन आई एवर वॉज एंड हैप्पी बाई डूइंग सो। तो ये लाइफस्टाइल कंटिन्यूस है, लेकिन ये बात भी सही है कि कभी कभी कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। मेरे वर्टिगो हो गया था, तो उसके बाद में आई हैड टू रीबिल्ड माय मसल्स, आई हैड टू मेक श्योर दैट आई बिकम हेल्दी अगेन। तो इश्यूज आ जाएंगे, लेकिन उनको रिपेयर करना पड़ता है।